शरीर गद गद गिरा नयन बहनीरा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धन्यवाद। थैंक यू। 2-3 मिनट अभी चल सकता है आगे। ओके। तो वो जो राग पुरिया धनाश्री है उसमें मैं थोड़ा धुन सुना देता हूँ। हाँ हाँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके मिश्रा जी। जी साधुवाद, धन्यवाद, शुभकामना, मंगल कामना, सादर प्रणाम, बहुत बहुत आभार आपका। अशेष धन्यवाद सर जी। अशेष धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। समूह से धन्यवाद दे रही हैं बहुत प्रसन्नता जी से। जी जी। महाप्रभु जी आ गए हैं जिनको कथा करनी है। एक मिनट ये बुला तो दीदी को या उसको बुला तो 1 मिनट ले बात करवा देता हूँ, है ना? कहाँ गए? बात करवा देगा। तेरी मम्मी बात कर रही है।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माननीय पदाधिकारी गायत्री जी से अनुरोध है वो अभी उपक्रम शुरू करें। मैनी मैनी थैंक्स। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। निवृत तरसे उपगीयमानाद भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामात् कौतम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्यत विना पशोग्नात् सतांग प्रसंगान मोबिलित संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणात् आशु अपवर्गवत्मनि श्रद्धा रतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति। My respectful salutation to the saints and scholars congregated through this electronic device as listeners. Also, I express my sincere veneration to the erudite scholars, Vaishnavas. The Dambandhan episode, or the episode on binding Lord Krishna by Mother Jashoda, was elaborately discussed successively by Acharya Jakanji and Acharya Hare Krishna ji with their characteristic evocative styles. All the three are spiritual thinkers of the highest order. They have been observing strict spiritual disciplines all along their lives. I highly appreciate the versatility of Acharya Hare Krishna ji. His regular repetitive contemplation on the Lord has made his body-mind combine a repository of devotion. His discussion on the Gita and the Bhagavatam have been a great success. When the musical sound of his talks reach my ear, I feel consecrated, sanctified, and rejuvenated, and Saddha Rati Bhakti Anukramishati in its strain. A devout scholar par excellence, I am unable to express the devotional strain it leaves in my whole psyche. Is our container amenable to receive the valuable devotional message he has been transmitting, disseminating since long? Definitely, these talks are not easy-go life talks. Vidwan eva vidanati, vidyojjana parishramam, bandhya king vijanati, gurbi prasavednam. This question has been arisen by George Cadona, the famous American linguist, grammarian, Indologist. Acharya Hare Krishna ji devises effective methods, maybe question answer method, or participation of the members of the audience, etc., in order to extricate us from the indulgent nature of our existence and tries to inculcate the higher principles of life as enunciated by our ancient rishis and Vaishnava scholars. People like them, or these three scholars, are assets of the humanity. I wish long life of these Suhrudas, or the true friends of mankind. Let them devise ways and means to resuscitate our thinking pattern, spiritual advancement, by repeated rinsing our minds through their nectarine talks. Rinsing means गंदा निकालना है, those imperfect thought waves. गंदा क्या है भाई? ये जो obnoxious elements है, thought waves है, those are to be eliminated. मन में हर समय जो अनडिजर्व एलिमेंट्स, दोषयुक्त तो है, जो obnoxious है, गंदा भाव तरंग है, उसी को हर समय हरि कथा के माध्यम से निकालना और हरि कथा हरि चिंतन में सदैव डूब रहना चित्त शुद्धि के लिए जरूरी है भाई, बिल्कुल. So we are actually captivated by the master, a super craftsman, Bhagavan Vyas, for his marvelous description of the childhood pastimes of Lord Krishna. Through his inimitable style, he has the wonderful acumen of generating exuberant devotion in all the episodes of the Bhagavatam. Mother Jashoda's love for his son Krishna is exquisitely delineated in Dambandha Lila. It is the natural proclivity of a mother to be quite serious about the behaviors, activities of her child. Balakrishna's naughty behavior has made her exhibit such a pattern of behavior. God, what we learn from the Dambandha Lila, that God bestows His grace to be bound only after He sees strong eagerness in the devotees to bind Him. In Jashoda's case, at first we find the absence of both Jashoda's eagerness to bind and God's grace to be bound. Jashoda used to chastise and reprimand Balakrishna, as normally mothers do,
as a mother, it is our responsibility to take him to task, to take their child to task. So it is an appropriate service of the devotee rendered to the Lord. She thought of him uninterruptedly to change his naughtiness. On that day, she was seized with a strong desire to bind him by hook or by crook. I must bind Krishna, Mother Yashoda thought. But each time she tried with a rope to bind, it fell short of 2 inches. What was the mystery? She appended ropes one after another, but it would not be of adequate length to bind Krishna. Yashoda failed to bind Krishna, but got resolved to bind him by all means. Krishna also would not relent. Mother grew exhausted and started perspiring profusely. Both of them remained adamant in their obstinacy. God sees, tests the earnestness of the devotee's service. If the devotee does not flinch from his service amidst all adversities, then God relents. Such was the situation in the case of Yashoda. Krishna felt Yashoda's utter embarrassment. He relented. He ultimately gave in. He let himself bound. He condescended to be bound. And how? He condescended to be bound out of grace. Parishramang Krishna Somatu Parishramang Društva Krupaya Sobandhane Asit. This is the import of the whole episode. Mother Yashoda was the eternal servant of God, most perfect servant of God. Her unremitting love and perfect service to God invoked His grace. This is the import of the whole episode. Now I request Venerable Acharya Hare Krishna Ji to start his discourses as usual on the Bhagavatam, on the relevant verses. Also, of course, I have no book with me. I request him to kindly start his discourses as usual. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाद्रुशङ्खमध्ये सतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेण भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि अनर्पितचरीं चिरत्करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिपुरतसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचीनन्दनः राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन् मधुरस्थलीके राधा यशो मुखरमत्त खगवलिके राधा विहार विपिने रमतं मनो मे गोवर्धनो जयति शैल कुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजश्वशाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गङ्गां मुरहरदयिता तत्पादपद्मप्रसूतं
वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन तमादिदेवं सुहितावतारं तमालवर्णं करुणानिधानम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं सुसुख निभृत चेतास्तद्विदस्तान्यभावो व्यजित रुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयं व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिल वृजिनघ्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इस सायंकालीन श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त वैष्णवों को, सुधी समवाय को, गुरुजन वर्ग को तथा मित्र मंडली को मैं कार्तज्ञ विज्ञापन पूर्वक प्रणाम निवेदन करता हूं। आप सभी की अनुकंपा से हमें यह दुर्लभ अवसर संप्राप्त है भगवद गुणानुवाद, श्रवण और कीर्तन करने का। जन्म जन्मांतरों के सुकृत का यह फल है कि हमें श्रीमद् भागवत कथा मंदाकिनी में प्रातः और सायं अवगाहन करने का परम सौभाग्य संप्राप्त है। तो इसमें, इस सौभाग्य में भगवान की अहेतु की कृपा तथा समस्त श्रोतृ मंडली की अनुकंपा ही मुख्य हेतु है। ये समझते हुए आप सभी के चरणों में पुनः प्रणाम करते हुए गत जहां पर कथा की विश्रांति हुई थी, जैसे हमारे प्रिय श्री गयाधर जी, पूज्य गयाधर जी जैसे अत्यंत मार्मिक शैली से, अत्यंत मधुर भाव से गत दिवस कथा की दाम बंधन लीला का जो सारांश है, इसमें भक्त भगवान को बांधने को समर्थ होता है, उसी का जो सार तत्व, गंभीर तत्व को व्यक्त किए, तो उसी तत्व को आधार करते हुए हम आगे की कथा में प्रवेश करना चाहते हैं। तो जैसे कल ये कथा हुई थी कि माता यशोदा के जो परिश्रम है, माता यशोदा थक चुकी है कि उसकी माता यशोदा की बेणी तो खुली गई थी पहले, बेणियों में जो माला थी, पुष्पों की माला थी, वो सब गिर गई थी। माता का शरीर पसीनों से लथपथ हो गया था। तथापि माता का ये आग्रह था कि मैं कृष्ण को बांध कर रहूंगी। अब अंत में निराश हो जाने से बाद माता अंतिम प्रयास कर रही थी, तो भगवान इसे माता की अपूर्व जो समुत्कंठा, उन्हें बांधने के लिए जो परम आग्रह, उसको अवलोकन करके भगवान का हृदय कृपा से पिघल जाता है। ऐसे तो भगवान परम करुणामय है, और भक्त के परिश्रम को देख करके उनका हृदय नवनीत सुकोमल हृदय वो द्रवीभूत हो जाता है। तो जब ही कृपा शक्ति का समुद्गम होता है, तो भगवान की जो विभुता शक्ति है, जिस शक्ति से भगवान व्यापक होते हैं, भगवान व्यापक होते हुए भी व्याप्य होते हैं, अणोरणीयान महतो महीयान। तो मैं माता मुझे बांधने को समर्थ हो जाए, मैं माता के हठ को मान लूं, ऐसे भगवान की करुणा शक्ति के उदय होते ही भगवान की जो विभुता शक्ति है वो अंतर्हित हो जाती है। भगवान की जो कृपा शक्ति है, जो भक्त वात्सल्य शक्ति है,
वो समस्त शक्तियों के सम्राज्ञ है, वो चक्रवर्तिनी है। कृपा शक्ति के अनुगत्य में ही भगवान की अनंत शक्तियों का साम्राज्य है। अनंत शक्तियां कृपा शक्ति के अनुगत होकर काम करती। तो कृपा शक्ति के परिप्रकाश होते ही जैसे ही भगवान माता के परिश्रम को देखते हुए माता मुझे बांधने को समर्थ हो जाए, मैं बंध जाऊं, ऐसी भावना आते ही Found out of grace. इसी भावना आते ही तो भगवान की जो विभुता शक्ति है वो तिरोहित हो जाती है और भगवान बंध जाते हैं। क्षमा तु स्विन्न गात्रायाः विस्रस्त कवर स्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासि स्वबंध। तो इससे आगे हम पहुंचते हैं, तो इसके आगे श्लोक का उच्चारण करते हैं। एवं संदर्शितायंग हरिणा भृत्यवश्यता, एवं संदर्शितायंग हरिणा भृत्यवश्यता, स्ववसेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वसे, स्ववसेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वसे, स्ववसेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वसे। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजर्षि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो परम स्वतंत्र है, स्ववसेनापि कृष्णेन, वो परम स्वतंत्र स्ववश है। तो और केवल स्ववश नहीं है, वो यस्येदं सेश्वरं वसे, ये संपूर्ण जगत और जगत के जो प्रवर्तक जो ईश्वर है, ब्रह्मा रुद्र इंद्र चंद्रादि है, सभी को अपने वश में किए हुए। शेश्वरम ईश्वरे सहितम इदं जगत वशे वर्तते यस्य। तो ब्रह्मा रुद्र आदि के साथ, समस्त देवताओं के साथ यह संपूर्ण जगत भगवान श्री कृष्ण के वश में है। फिर भी भगवान श्री कृष्ण माता के द्वारा बंध जाते हैं और बंध करके उन्होंने संसार को यही बात दिखाते हैं। बंद करके भगवान ने यही बात दिखाई है। क्या दिखाई है? कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में हूं। एवं संदर्शिता ह्यंग, ये जो अंग शब्द है अत्यंत प्रेमपूर्ण संबोधन है। श्री सुखदेव महाराज जी श्री राजर्षि परीक्षित जी को प्रीति से संबोधन करते हैं, अंग, हे प्रिय परीक्षित, देखिए भगवान के जो चरित्र कितना मनोहर है, जो स्ववश है, संपूर्ण जगत ईश्वरों के साथ जिनके वश में है, वो माता के हाथ बंद करके ये दिखाते हैं। संदर्शिता, ये प्रतिपादन करते हैं, ये बताते हैं, ये सूचना देते हैं। क्या ना? आत्मनो भृत्यवश्यता, मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में हूं। यह बात को श्री कृष्ण बंद कर बता दिए। ये मैं स्ववश होने पर भी, ब्रह्म रुद्रादि के नियंता होने पर भी मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में रहता हूं। प्रेमी भक्त मुझे जैसे नचाते हैं ऐसे नाचता हूं, उनकी इच्छा की परिपूर्ति करता हूं। इस बात को भगवान अपनी भृत्यवश्यता को, भक्त वात्सल्य को इस दामबंधन लीला के द्वारा ये जगत को दिखाते हैं। भगवान की भक्त वत्सलता का ये प्रतिपादनकारिणी ये लीला है। अतएव एवं संदर्शिता ह्यंग हरिणा भृत्यवश्यता, हरिणा भृत्यवश्यता संदर्शिता, ईदृशेन हरिणा ना स्ववसेन कृष्णेन, जो सभी को आकर्षण करने वाले हैं इसलिए कृष्ण है, और सभी के जो मनोहरता है इसलिए हरि है। वो भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण माता के हाथ बंध करके अपनी भृत्यवश्यता को श्री कृष्ण ने जगत के सामने दिखा दी।
देखिए, मैया ने तो भगवान को बांध लिया। अगर कोई कहे कि भगवान बन गए तो भृत्य वश हो गए, तो इसमें भगवान की स्वतंत्रता की हानि हुई। कोई कहे भगवान तो परम स्वतंत्र है, अगर बंध जाते हैं भक्त के हाथ तो ये स्वतंत्रता का हानि है क्या? भगवान बंद क्यों जाते हैं? भगवान तो भगवान है, संपूर्ण ऐश्वर्य के जो अधीश्वर है। तो ये समझना चाहिए, अगर भगवान को अपनी भगवत्ता ही कायम रखना है तो अवतार ही न लेते। भगवान को अपनी भगवत्ता को, अपनी स्वतंत्रता को ही कायम रखना हो तो भगवान ब्रज में अवतार ही क्यों लेते? दुष्ट संहार और शिष्ट पालन तो वैकुंठ में बैठकर ही अपने संकल्प मात्र से भगवान कर सकते हैं। जो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्टताम जो भगवान कहे हैं, वो तो वैकुंठ में रहकर, गोलोक में रहकर भगवान अपने संकल्प से, सत्य संकल्पता शक्ति से ही भगवान दुष्ट संहार और शिष्ट परिपालन कर सकते हैं। उसके लिए उनको अवतार लेने की, प्रापंचिक लोक लोचन गोचरीभूत होने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए अवतार लेते हैं कि ये प्रेमी भक्तों के साथ लीला कर सके, प्रेमी भक्तों की इच्छा को पूर्ण कर सके। नहीं तो जिसके अंश के अंश से ही सृष्टि स्थिति प्रलय होता है, उनको जगत के भार हरण करने के लिए स्वयं आने की क्या जरूरत है? देखिए, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के ये 85 अध्याय के श्लोक के जस्यांशांश भागेन, जस्य अंश 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 जस्यांशांश भागेन विश्वोत्पत्ति लयादयः भवन्ति किल विश्वात्मन स्वामहं शरणं गता। भगवती देवकी माता, भगवान को देवकी माता ने स्तुति की है, जस्य अंश 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 भागे, इसके अंश अंश और अंश से, अर्थात अत्यंत सामान्य अंश से भी विश्व की सृष्टि स्थिति लय होता रहता है। मैं आपको शरणापन्न हूं। तो जिसके अंश 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 से विश्व की सृष्टि पालन और संहार होता है, उनको खुद अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? यही आवश्यकता है जिसको आगे कहते हैं कि 10वें स्कंद में गर्भस्तुति में देवतागण कहें, नते भवस्येष भवस्य कारणम बिना विनोदम बत तर्कयामहे भवो निरोध स्थितिरप्य विद्या कृता जतस्तद्यभयाश्रयात्मनि नते भवस्येष भवस्य कारणं विना विनोदं बत तर्कयामहे भवो निरोध तितिरप्य विद्या कृताय तस्त्वद्य भयाश्रयात्मनि। तो इसलिए कहले न अभवस्य ते भवस्य कारणम, आप तो अभव हैं, अजन्मा है, आपके जन्म का कारण क्या हो सकता है? कहते हैं बिना विनोदम न च तर्कयामहे, विनोद को छोड़ करके, आनंद को छोड़ करके और कोई कारण नहीं है। तो परमानंद स्वरूप जो है, उनके आनंद क्या है? ना भक्तों को आनंद देना, भक्तों को आनंद देकर खुद आनंदित तो होना, भक्तों के साथ आनंदमय लीला विलास करना, यही उद्देश्य है परमानंद स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को अवतार लेने की यही प्रयोजन है। अतः ब्रज में तो मधुराधिपति प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के मधुर रस का जो प्रवाह, उसको प्रवाहित करना चाहते हैं और अपनी मधुरतम लीला से ब्रज के परम प्रेमी भक्तों को आनंदित करने के लिए ही इनका अवतार है। अगर श्री ब्रजचंद्र आज यशोदा जी के द्वारा बंध नहीं जाते तो माधुर्य रस का प्रवाह तो शुष्क हो जाता। तो इसलिए अपनी
मधुरता, भक्तों के साथ मधुरतम विनोद करने के लिए जो भगवान का अवतार है, उस मधुरतम विनोद का ये एक विनोद पूर्ण लीला है, प्रेम पूर्ण लीला है, श्री दाम बंधन लीला है, जिससे भगवान दामोदर नाम से परिचित हो जाते हैं। नित्य जो कि इस दामोदर, अतः जो नित्य मुक्त भगवान है वो माता के हाथ बंध जाते हैं और बंद करके अपने नित्य स्वरूप को भूल जाते हैं। नित्य स्वरूप को, अपने जो नित्य मुक्त स्वरूप को भूल जाते हैं और बंध जाते हैं, तो भक्त के अधीन हो जाते हैं। आत्मनो भृत्य वश्यताम, जिसको ब्रह्मा जी 10वें स्कंध में स्तुति में कहते हैं कि ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्त एव, ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्त एव, जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां, जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां, स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभिः, ये प्रायसो जितो व्यसितैस्त्रिलोक्याम्। कहते हैं आप अजित होने पर भी उनके द्वारा जित हो जाते हैं। आप अजित हैं, कोई आपको जय नहीं कर सकता है आपकी, लेकिन आप जीत हो जाते हैं उन भक्तों से। किन भक्तों से? ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्त एव, ज्ञान के लिए, तत्व ज्ञान के लिए सामान्यतम प्रयास भी न करके जो आपके पास प्रणत होकर रहते हैं, नमन्त एव, और जीवंति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां, साधुओं के मुख कमल से निर्गत आपकी जो मधुरतम कथा है, जो कथा मंदाकिनी है, उसमें अवगाहन करते हुए, कथा सुधा को पान करते हुए, केवल मात्र जीवन धारण करते हैं और ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। जीवंती केवलम सन्मुखरितां भवदीय वार्तां, साधुओं के मुख से निर्गत जो आपकी कथा सुधा है, जो कथा पीयूष है, उसको पान करते हुए जो जीवन धारण करते हैं। और तनुवांग मनो स्थाने स्थिता श्रुतिगतांग तनुवांग मनो, साधुओं के स्थान में रहकर अपने आप श्रुतिगत होने वाली कथा मंदाकिनी को, कथा सुधा को पान करते ही जो जीवन धारण करते हैं। और तनुवांग मनो भी, तनु से, वाणी से और मन से आपको नमन करते हुए, आपको प्रणाम करते हुए जो जीवन धारण करते हैं, बस तावन मात्र से आप अजित होने पर भी जित हो जाते हैं। और देखिए, अजित भगवान को जय करने के लिए, षोडश भगवान को अपने वशीभूत करने के लिए कितना सहज उपाय, जो समस्त साधनों को छोड़ करके, ज्ञान के लिए ईसद भी प्रयास न करके, साधुओं के मुख से निर्गत भगवत कथा पीयूष को पान करते हुए और काय मनोवाक्य से अपने प्रणाम को विज्ञापन करते हुए कथा के प्रति वाणी से, शरीर से और मन से अनुगत्य को प्रकाश करते हुए जो जीवन धारण करते हैं, कथेक जीवी होते हैं। तात्पर्य, कथा मात्रिक जीवी जो होते हैं वो तो अजित भगवान को भी जय कर लेते हैं। इस श्लोक की टीका में श्री जीव गोस्वामी पाद तो तनुवांग मनोभी को वो जितोष के साथ अन्वय करते हैं। आप अजित होने पर भी भक्तों से शरीर, वो भक्त आपको अपने शरीर से और वाणी से, मन से भी जीत लेते हैं। शरीर, आप तो वो भक्त तो आपको तनु से, अर्थात आपको पकड़ लेते हैं, आपको दर्शन करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो आप उनके पास रहते हैं, तो तनु से जीत लेते हैं। और वाणी से निरंतर आपकी कथा का गान करते रहते हैं, तो वाणी से भी जीत लेते हैं। और मन से निरंतर आपको अपने हृदय कमल में धारण करते रहते हैं वे भक्त, तो आपको मन से भी, हृदय से भी जीत लेते हैं। आप उनके हृदय कमल को छोड़ करके, उनके हृदय भवन से बाहर आप निकल ही नहीं पाते।
देखिए, जब श्री बिल्वमंगल जी जब वृंदावन के मार्ग में चलते थे, श्री लीलाशुक बिल्वमंगल जी तो अंध हो गए थे। भगवत दर्शन से शून्य अपने नेत्रों को अपने हाथ से ही नष्ट कर दिए थे, और अंध होकर के भगवत विरह व्याकुल होकर के हे देव हे दयित हे भुवनेक बंधो बोलते हुए जो वृंदावन के मार्ग में वो प्रस्थान कर रहे थे वृंदावन के लिए, अब अंध हो गए हैं तो मार्ग की पता ही नहीं। तो स्वयं श्री कृष्ण ही बालक बन करके गोपनीय रूप से आकर के तो बाबा कहाँ जा रहे हो? वृंदावन जा रहा हूं, लेकिन अंधा होने से रास्ता तो मिलती नहीं है, कोई बता दे तो ठीक है। बोले बाबा मैं उधर ही चल रहा हूँ, ये आप बता दो, लेकिन आप तो अंधे हैं, आपकी जो यष्टि है, जो लाठी है, एक छोर में ही पकड़ता हूं, दूसरे छोर को आप पकड़ लीजिए, तो आप मेरे पीछे पीछे आइए, चले पड़े। तो भगवान बालक बन करके बिल्वमंगल जी को वृंदावन के मार्ग में जिनके पास जाना है वह स्वयं ही ले जाते हैं। लेकिन बिल्वमंगल जी को पता नहीं कि ये मेरे आराध्य प्रभु श्री नंदनंदन है, मेरे प्राण प्रियतम श्री वृंदावन चंद्र है, पता नहीं। लेकिन वो शरीर की, भगवान की जो शरीर की दिव्य गंध है, दिव्य मधुरिमा है, उनके आघ्राण से हृदगत होकर उनको समझा देता है कि ये कोई प्राकृत बालक नहीं है। तो तुरंत क्या करते हैं बिल्वमंगल, वो लाठी को फेंक करके श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लेते हैं। जब हाथ पकड़ लेते हैं और श्री कृष्ण तुरंत हाथ छोड़ करके भाग जाते हैं। ये तो मुझे समझ लिया, तो मुझे भागना चाहिए। जब भाग जाते हैं तो बिल्वमंगल हंसने लगते हैं। हंसते हुए अपनी हृदय की जो अभिव्यक्ति को देखिए उनकी क्या है, हस्त मुत्क्षिप्य निर्जासी बलात् कृष्ण किम अद्भुतम हृदया यदि निर्जासी गणयामि ते पौरुषम। कहते हे मेरे प्यारे श्याम सुंदर, हस्त मुत्क्षिप्य निर्जासी, तुम तो बलवान हो और मेरे मुझसे हाथ को छुड़ा करके भाग जाते हो। मैं पथिक हूं, सन्यासी हूं, परिव्राजक हूं और अकेला चल रहा हूं, उपवासी हूं, तो मैं तो दुर्बल हूं, लेकिन तुम तो अभी किशोर हो और बलवान हो, कितने बली हो, तो मेरे हाथ को छुड़ा कर भाग जाते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। हस्त मुत्क्षिप्य निर्यासी बलात् कृष्ण किम अद्भुतम, हृदयादि निर्यासी, यदि तुम मेरे हृदय से निकल जाओगे, गणयामि ते पौरुषम, मैं तुम्हारे पौरुष को समझ लूंगा, वस्तुतः तुम में सामर्थ्य है ये मान लूंगा। मेरे हाथ छुड़ा कर भाग जाने में क्या सामर्थ्य है तुम्हारा? अगर मेरे हृदय से निकल जाओगे, मैं हृदय सिंहासन में तुम्हें बैठा करके निरंतर तुम्हें अपनी मानसिक जो भक्ति अर्घ्य से आपको निरंतर नीराजन कर रहा हूं। हृदय सिंहासन से आप अगर निकल जाओगे तो मैं तुम्हारा पौरुष को मान लूंगा, तुम सच्चे सामर्थ्यवान हो, तुम समर्थ पुरुष हो, मैं समझ लूंगा। हस्तमुत्क्षिप्य निर्यासे बलात् कृष्ण किम अद्भुतम हृदया यदि निर्यासी गणयामि ते पौरुषं हृदया यदि निर्यासी गणयामि ते पौरुषं। लेकिन कहाँ हृदय से निकल पाते? नंदनंदन बिल्वमंगल जी की, लीलासुक बिल्वमंगल जी के हृदय से कैसे निकल पाते? तो भगवान फिर लौटाते, कहते हृदय से निकलना तो भगवान के लिए ये संभव ही नहीं है। जैसे देखिए श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में प्रचेताओं को देवर्षि नारद जी का ये जो उपदेश है, जिसमें भगवान के ये प्रेमी स्वभाव को व्यक्त करते हुए देवर्षि नारद जी प्रचेताओं को कहते हैं, अपगत सकलेषणामलात्म अपगत कलेषणामलात्म निविरत वेदित भावनोपभूत निज जन वसगत्व मात्मनोयं न सरति छिद्रवदक्षर सतांगी। कहते हैं देखिए, अपहत सकलेषणामलात्म, अपहत सकलेषणा, जिनके पुत्रेषणा, वित्तेषणा, गृहेषणा इत्यादि समस्त ऐषणाएं
अर्थात समस्त वासनाएं निकल जाने से जिनके अंतःकरण विशुद्ध हो चुका है, ऐसे संतों के हृदय में आप निरंतर रहते हैं और रहते हुए उनके संतों के हृदय को बढ़ते हुए ऐसे बढ़ते हैं जिसे मानो आप खींचते हुए आ जाते हैं। अपहत सकले सणामलात्मन निविरत मेधित भावनोपहूत। अविरत जो जिनकी अंतःकरण विशुद्ध हो गया है, जिनके अंतःकरण में भक्ति की भावधारा निरंतर बढ़ती जाती है, उनकी भावना से आप जैसे खींचते हुए चले आते हैं। और क्या है, अपनी भक्ताहीनता को कृतार्थ करते हुए, अपनी भक्त वश्यता को चरितार्थ करते हुए आप हृदयाकाश की भांति उनके हृदय से निकलते ही नहीं। कभी हृदय से आकाश को निकाल सकते हैं क्या? छिद्र बदक्षर शतांगी। इसे हृदय से हृदय आकाश को निकालना असंभव है। ऐसे भगवान ऐसे संतों की वासना विनिर्मुक्त संतों के हृदय में समस्त वासना विरहित हो जाने से जिनके हृदय में भागवती भक्ति की धारा निरंतर अभिवृद्धि को प्राप्त होती रहती है, ऐसे संतों के हृदय में तो आप खींचे आकर बंध जाते हैं और नफरती निकलते नहीं है। निजजन वसगत्व आत्मनो अयन, अपने निजजन वसगत्व को प्रतिपादन करते हुए अपनी भृत्य वश्यता को जहाँ कहते हैं दर्शन आत्मनो भृत्य वश्यता, उसी को देवर्षि नारद कहते हैं निजजन वसगत्वमात्मनो यन्नसरति छिद्र बदक्षरसता। निजजन वसगत्व को प्रतिपादन करते हुए नसरति अपहत सकलेशनामलात्म न्यविरत मेधित भावनोपहूतः। निजजन वसगत्वमात्मनो न सरति छिद्र वदक्षरसतां हि, न सरति छिद्र वदक्षरसतां हि। और आगे देखिए देवर्षि नारद कैसे कहते हैं, कहते इससे भगवान को जो भक्तों के लिए स्वश होकर भी भक्तों के हाथ बेचे जाते हैं, भक्तों के अधीन हो जाते हैं, इससे भगवान को कोई कृतज्ञ व्यक्ति कैसे छोड़ सकता है? कोई कृतज्ञ जो सचमुच कृतज्ञ हो और भगवान की वश्यता को, भक्त वात्सल्य को, भक्त करुणा को जो समझ लिया हो, जिसने समझ लिए, वो भक्त कैसे उनको भूल सकता है? कहते स्त्रिय मनुचरति तदर्थिनश्च, श्रिय मनुचरति तदर्थिनश्च द्विपदपतिं विबुधां च जस्पूर्णः न भजति निज भृत्य वर्गतंत्र कथममु मुद विसृजेत आन कृतज्ञ, कथममु मुद विसृजेत आन कृतज्ञ। चतुर्थ स्कंद के अंतिम अध्याय का वचन देखिए, कहते श्रिय मनुचरति तदर्थिनश्च। भगवान ये भगवती भगवान कैसे हैं ना, ये भगवान क्या है ना, स्वपूर्ण आत्मानंद से परिपूर्ण, सच्चिदानंद स्वरूप होने से निजानंद से निरंतर रहते हैं भगवान स्वपूर्ण, और उन्हें निरंतर भगवती लक्ष्मी सेवा में संलग्न रहती है। इस लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सुरासुर सभी लालायित है, समस्त सुरगण असुरगण देवगण इस लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष निक्षेप के लिए, भगवती लक्ष्मी अपने कृपा कटाक्ष हमारे पर निक्षेप कर दे, ये जो सभी देवगण चाहते हैं, लेकिन सभी को छोड़ करके भगवती लक्ष्मी जी की सेवा करती रहती है। तो उन लक्ष्मी को भी और समस्त देवताओं को भी, राजाओं की भी, उनकी सेवा को भी जो कोई परवाह नहीं करते हैं, ख्याल भी नहीं करते हैं, उसकी ओर आकर्षित भी नहीं होते हैं, तो क्या करते हैं? लेकिन ना अपने भक्त वर्ग तंत्र निज न भजति निज भृत्य वर्ग तंत्र, निरंतर
सेवा करने वाले लक्ष्मी को भी छोड़ करके, लक्ष्मी की ओर भी आकर्षित न हो करके, जिस लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए समस्त सुरासुर लायित है, उसी लक्ष्मी को भी, लक्ष्मी की भी परवाह न करके ये क्या करते हैं ना, वो अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। और ऐसे करुणासागर भगवान को, करुणामय भगवान को, भृत्यानुग्रह कातर भगवान को भला ऐसा कौन कृतज्ञ पुरुष है, थोड़ी देर के लिए भी कोई छोड़ सकता है, कोई भूल सकता हो, विस्मरण कर सकता हो, कोई सचमुच कृतज्ञ हो? हम तो कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञ है। तो इसलिए ऐसे परम करुणामय भगवान को, परम करुणामय प्रेमी प्रभु को भूल जाते हैं। पहले कथम अमुम उद्विसृजेत, कथम अमुम उद्विसृजेत कुमान कृतज्ञ। कोई कृतज्ञ होगा तो ऐसे प्रभु को नहीं भूल सकता है। प्रिय मनुचरतिम तदर्थिनश्च विपदपतिन विबुधां च जस्वपूर्णः न भजति निज भृत्य वर्गतं, न भजति निज भृत्य वर्गतंत्र। कथममु मुद्विसृजेत पुमान् कृतज्ञः, कथममु मुद्विसृजेत पुमान् कृतज्ञः, कथममु मुद्विसृजेत पुमान् कृतज्ञः, कथममु मुद्विसृजेत पुमान् कृतज्ञः। तो ये भगवान, इस तरह करुणामय भगवान को कौन कृतज्ञ भूल सकता है? देखिए आगे यही कहते हैं कि तो यही भगवान जो निज जन वशगत्व, निज भृत्य वर्ग तंत्र, अपनी भृत्यवश्यता को दिखाने में उनको आनंद होता है। तो ये लोक में भी ऐसे होता है कि कभी तो स्वामी तो अपने प्रिय सेवक को तो प्यार करता है, लेकिन अपनी कांता को भी छोड़ करके, अपने पुत्रों को भी छोड़ करके, अपनी संपत्ति को छोड़ करके कोई सेवक को प्यार करे, सेवक को प्रीति करे, ऐसे स्वामी तो दुर्लभ है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं तो आत्यंतिक श्री को भी छोड़ करके इस भक्तों को प्यार करता हूं। प्रियं चात्यंतिकिं ब्रह्मन् जैसा गतिरहं परा, मयि निर्बद्ध हृदयाः साधव समदर्शना अस्ति कुर्वन्ति मां भक्त्या सत स्त्रियः सत्पतिं यथा। जिसे पतिव्रता नारी अपनी सेवा से अपने प्रिय पति को वशीभूत कर लेती है, उत्तम पति को जिसे पतिव्रता नारी वशीभूत कर लेती है, ऐसे ही समदर्शी साधुगण जिनका हृदय मुझ में निबद्ध है, मई निर्बद्ध हृदया, मुझ में जिनका हृदय, जिनका भोजन शयन असन पान व्यवहार समस्त क्रियाएं मुझ में समाहित है, ऐसे समदर्शी साधुगण अपनी सेवा से, अपनी प्रीति से, अपने प्रेम से वशीभूत कर लेते हैं। देखिए आगे क्या कहते हैं, साधवो हृदयं वह्यम साधु नाम हृदयं तो हम मदन्यते न जानन्ति। Not listening. कालीबाबू श्रूयते वा? न श्रूयते माता। न श्रूयते न श्रूयते इति सूचना दातव्या।
आचार्यः न श्रूयन्ते। संभवतः म्यूट जातम्। इदानीं तु न वर्तन्ते खलु, संगोष्ठ्यां न वर्तन्ते, नेटवर्क प्रॉब्लम अस्ति, नेटवर्क समस्या। संगोष्ठ्यां न वर्तन्ते। आचार्यः संगोष्ठ्यां न वर्तन्ते। वर्तन्ते ते खलु निष्क्रान्ताः। अन्तर्जाल समस्या संभवतः। सूचनीयाः खलु, मातरः सूचनीयाः खलु, गुरवः सूचनीयाः। झटिति पश्यामि। मयापि न श्रूयते वारं वारं। किं जातम्? निष्क्रान्ताः, गुरवः निष्क्रान्ताः, इदानीं कथा मध्ये न सन्ति, संगोष्ठ्यां न वर्तन्ते खलु। अभी न देती हूँ। आगमिष्यन्ति तु यान्त्रिकी त्रुटिः काचन सञ्जाता, इदानीम् आगमिष्यन्ति, प्रतीक्षामहे खलु। अस्तु किमभूत्, कथं न श्रूयते? हाँ, अभी गुरुजी संगोष्ठी में आ गए क्या काली बाबू? नहीं, अभी नहीं आए। नहीं नहीं। हाँ, यही प्रॉब्लम है। हाँ, इदानीं किञ्चित् किञ्चित् दूरात् स्वरः श्रूयते, दूरात् एव स्वरः श्रूयते किञ्चित्। न तथा सम्यक् श्रूयते गुरवः। दूरात् एव शब्दः श्रूयते, परन्तु कथा शब्दः न श्रूयते। मेरे फोन लेके आप बात करो, आप कथा करो, मेरे फोन लीजिए। यांत्रिकी त्रुटि। तो मुझे पता नहीं था कि आवाज नहीं आ रही है, तो अभी पुनः स्मरण करते हैं। अभी ये कुछ इको हो रहा है। नहीं गुरुजी, सही है गुरुजी, सही है गुरुजी, आवाज सही आ रही है। आवाज स्पष्ट आ रही है क्या? जी गुरुजी, हाँ जी गुरुजी। ठीक है। तो ये जो भगवान की जो ये दिव्य लीला है, इस लीला से ये दिव्य देखिए, इस लीला में जो दिव्य जो मधुरता, जो माधुर्य का समान, इसको देखते हैं। देखिए, ये भगवान जिनके स्मरण मात्र से समस्त कामना का अंत हो जाता है, जिनके स्मरण से ही मत्काम शनके सर्वान आस मुंचति, समस्त कामना को आस मुंचति हृदगंध। तो लेकिन वो भगवान इस लीला में देखिए, शुरू में ही तांग स्तन्य काम आसाद्य मथनति जननी हरि गृहीत्वा दधिमंथानम निषेधत प्रीति महावन। भगवान स्तन्य काम बन जाते हैं और माता को निषेध करते हैं कि मैं स्तन्य काम हूं। और भगवान जो नित्य तृप्त है, इसमें अतृप्त जब माता छोड़कर चली जाती है, तो देखिए भगवान अतृप्त हो जाते हैं। तमंकम आरूढ़म पायस्तनम स्नेहस्नुतम सस्मितमीक्षति मुखम अतृप्तम उत्सृज्य जबे नसायजा उत्सीत्यमाने पयसी त्वधिश्रिते। कहते देखिए भगवान
नित्य तृप्त होने पर भी इसमें अतृप्त होते हैं जब मां छोड़कर चली जाती। देखिए भगवान कैसे लीला है। और केवल नहीं है, जो क्रोध रहित है, जो त्रिगुण स्पर्श रहित है, वो भी संजात कोप स्फुरितारुणाधरम छंदस्य दधिमंथ भाजनम त्वा मृषासु दृषदश्मनारहो जघास हयंगवमंतरंगतः। कहते संजात कोप, श्री कृष्ण को क्रोध आ गया, और खाली क्रोध अंतर में आया नहीं, उनके लाल लाल होठ फड़कने लगे, स्फुरितारुणाधर, और उन्हें दांतों से दबा करके, ओठों को दांतों से दबा करके पास ही पड़े हुए लोढ़े से दही का मटका को फोड़ डालते हैं। अब वो माता, जब ये तो भांड तो नष्ट हो गया, और माता के भय से ये मूर्छा अश्रु भी बनावटी आंसुओं से रोने की लीला करने लगते हैं। देखिए भगवान की ये कामना और अतृप्ति और ये जो कोप, ये भगवान भक्त के वशीभूत होकर के कैसे अपने नित्य स्वरूप को विस्मृत हो जाते हैं। और देखिए, और चोरी की लीला कर रहे हैं, चोरी करके खा रहे हैं, और चोरी करके भोजन करते हैं, और पीछे पीछे देख रहे हैं कि कहीं माता नो आ जाए। चौर्य विसंकिते क्षणम, हयंगवं चौर्य विसंकिते क्षणम, निरीक्ष्य पश्चात श्रुतमागमच्छनि। जिनके देखिए, जिनके भय से यम कुबेर चंद्र सूर्य सब भयभीत होते हैं। ये श्रुति कहती है, ये तैत्तिरीय का वचन है, भीषा अस्मात् वातः पवते, भीषा उदेति सूर्य, भीषास्माद् अग्निश्च इंद्रश्च, मृत्युर्धावति पंचम। जिनके भय से ये सभी भयभीत होते हैं कि श्री कृष्ण तो अपराधी की लीला कर रहे हैं, अतः क्रंदन रोकने पर भी उनके रोकने का नाम ही नहीं ले रहा है। श्री कृष्ण का हाथ पकड़ करके माता उन्हें डराती है, धमकाती है, तो श्री कृष्ण तो अपने हाथों से आंखें मल रहे थे, अतः मुख पर काजल की स्याही फैल गई थी। कसंत मंजन मसीणी स्वपाणिना उद्विख्यमाणं भयविभले क्षणम। और माता की यष्टि के भय से आंखें ऊपर ही उठाकर रखे, उद्विख्यमाणं, उन्हें उच्चे ही विख्यमाणं, कहीं माता यष्टि से मुझे पीट न ले, ये यष्टि की ओर ही देख रहे हैं। और माता बांध न पाए इसलिए कितने प्रयास किए, लेकिन मां के हटके सामने उनकी कोई भी चाल न चली। देखिए श्री विनय पत्रिका में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कैसे इस भाव को व्यक्त किए। जिन बांधे सुर असुर नाग नर, निज प्रबल कर्म की डोरी, जिन बांधे सुर असुर नाग नर, प्रबल कर्म की डोरी, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति हटि बांधो शकतन छोरी, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति हटि बांधो शकतन छोरी, सकतन छोरी। ये माता यशोदा की ये वात्सल्य प्रेम की अपूर्व शक्ति है, जिसके आगे भगवान अपने आप ही बंध जाते हैं, जिसको उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में कहते हैं, प्रेमी भक्त के सामने भगवान अपने आप को व्यक्त कर देते हैं, अपने आप को, अपने स्वरूप को उसके अधीन कर देते हैं। यमी वेश वृणुते तेन लभ्य, तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमी वेश वृणुते तेन लभ्य, आत्मा विवृणुते। जो
जिसको ये भगवान पसंद करते हैं उसके सामने अपने स्वरूप को व्यक्त कर देते हैं। किसको पसंद करते हैं? जिनके हृदय में उनको पाने के लिए लालसा तीव्रता को हो। तो इसी लीला को माता यशोदा व्यक्त करती है, जिसको भगवान खुद भी कहते हैं तुलसी जलमात्रेण जलस्य चुलुकेन वा क्रीणते समात्मानं तेभ्यो भक्तवत्। तो केवल ये तो वात्सल्य रस की लीला हुई। ये वात्सल्य रस के भक्तों के पास, सख्य रस के भक्तों के पास और मधुर रस के भक्तों के पास, सभी भक्तों के पास भगवान की ये वश्यता, भृत्य वश्यता, ये अत्यंत आश्चर्यजनक। देखिए, जो सख्य रस के भक्तों के पास जो क्रीड़ा करते हैं, एक बार कहते हैं एक बार जो लीला करते थे, दोनों दो दल में विभक्त हो जाते हैं, कृष्ण के दल और बलराम जी के दल। तत्रो बाह्य गोपाल कृष्ण विहार वीर हे गोपा विहरिष्याम द्वंद्वीभूय यथा यथम। ये दो भाग हो गए, क्यों दोनों दलों में बांट लीला। परिपूर्ण गोपा राम को एक दल के नायक बनाते हैं और एक दल के नायक बलराम जी को बनाते हैं। और ये उसमें शर्त हुआ कि जत्रा रोहंती जेतारो वहंती च पराजिता। जिसमें जिनका जय होगा जिसका, वो उसको पीठ में बैठा करके, जीतने वाला दल के लोगों को अपनी पीठ पर बैठा करके, पीठ पर चढ़ा करके एक निर्दिष्ट स्थान पर ले जाएगा जो पराजित होने वाला दल। और ऐसे करते करते, वो लीला करते करते भांडेर बनकर चले जाते हैं। और देखिए, अक्सर ये हो रहा है कि श्री कृष्ण पराजित हो जाते हैं। उवाह कृष्णो भगवान श्री रामानंद पराजित वृषभं भद्रशेतस्तु प्रलंबम रोहिणी सुतः। हारे हुए श्री कृष्ण को हारे हुए श्री कृष्ण ने श्री सुदामा को, जो सुदामा तो अलग है, ब्राह्मण सखा है, ये ब्रज के सखा श्री राम है। तो श्री कृष्ण श्री रामा को पराजित होकर ढोकर पीठ पर ले जाते हैं। देखिए, श्री कृष्ण श्री राम से पराजित होते हैं, तो अक्षर भक्तों के पास भी भगवान तो पराजित होते हैं। और जो मधुर रस के भक्त है, जो गोपीगण है, उनके पास तो भगवान नित्य पराजित होकर रहे। वाणी से कहते हैं, न पारयेहं निरवध्य संयुजां स्वसाधु कृत्यं विबुधायुषा पिबः यामा भजन दुर्जर देह श्रृंखला संवृश्य तरवः प्रतियातु साधुना। हे मेरी प्यारी गोपियों, तुम सबने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला है, जिन्हें बड़े बड़े योगी भी, सन्यासी भी, यति भी तोड़ने को समर्थ नहीं हो सकते। तुम्हें ये जो मेरा संजोग अत्यंत अनवद्य है, निर्दोष है। यदि मैं देवताओं की आयु लेकर अवतीर्ण होकर तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूं, ऋणों को परिशोध करना चाहूं, तो भी मैं ही नहीं चुका सकता हूं। मैं तो जन्म जन्म के लिए तुम्हारे ऋणी हूं। तुम अपने सौम्य स्वभाव से, साधुता से मुझे उऋण कर सकते हो, मुझे ऋणमुक्त कर सकते हो। प्रतिजातु साधुना, मैं तो ऋणी हूं, तुम अपने स्वभाव से मुझे ऋणमुक्त कर सकते हो। तो ये श्री कृष्ण अपने दास भक्तों के पास, वात्सल्य भक्तों के पास, सख्य भक्तों के पास और मधुर रस के भक्तों के पास, सभी जो भक्तों में अपनी जो भृत्य वश्यता है उसको प्रतिपादन करते हैं। ये श्रीमद् भागवत के जो इस लीला का वैशिष्ट है, इस लीला के समुद्बोधक ये दामबंधन लीला है। तो एवं संदर्शिता ह्यंग हरिणा भृत्य वश्यता स्ववसे नापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वसे स्ववसे नापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वसे। तो अभी समय को समागत देखते हुए समस्त श्रोतृ मंडली के चरणों में प्रणाम भी ज्ञापन करते हुए, अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए, मैं
अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। भगवत अनुकंपा होने से पुनः आगामी दिवस में इस कथा को पाठ कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे।